मैडम नमस्कार। मैडम मैडम कैन यू हाँ मैडम नमस्कार। मैडम आपण म्यूट रे अछंती। स्टिल सुबुनी मैडम। सुबह जाओनी। Some problem. हाँ मैडम आपण को वॉइस सुना जाउनी मैडम। मैं आउ थरे लॉगिन करंतु देखिया मैडम। हाँ हाँ ऑडिबल अच्छी मैडम? हाँ हाँ मैडम एबे ठीक अच्छी। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all of you. Now we will have the Art of Living session with Lagnajita Das, madam. She is a senior faculty of the Art of Living and has 21 years of practice of different forms of yoga from the Art of Living. She has 17 years of experience in teaching yoga and breathing techniques of the Art of Living and vast experience in conducting stress management programs in corporate sector. She has also coached yoga programs in many colleges, schools, and institutions, both for students as well as for faculty members. She also holds the position of State Teachers Coordinator Odisha and an executive member of Indian Yoga Association. So, welcome, madam, and over to you. My pleasure. Yes. So, good evening, sorry, good afternoon, all of you. May I request to switch on your videos, please? Can you hear me?
Am I audible? Yes. Yes, ma'am, you are audible. Participants, can you please switch on your videos? It's a request. I can just request, no? Okay, your choice. Ma'am, you're asking to switch on the video or switch off the video? Switch on the video. Sir. Okay, okay. You are there. So it's okay. हम लोग घर पे हैं या फिर ऑफिस में है कहीं भी है. If network is not the issue, then all of you can switch on your videos. Yeah, namaste ma'am, Sulochana ma'am. Okay. Thank you, Priyadarshi ji, for switching on your videos. Okay, so we'll start. So it's art of okay. Hindi, English, Odia, the whichever language. If Odia preferable, then I must say we will go with Odia. If no, then Hindi, English is okay. Yeah, Devasmita ma'am. Yes, madam. Anything is okay. Anything is okay. Great. तो क्या है कि हम पहले तो लेते हैं जितना बोला गया कि दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग. आई बिलोंग टू द आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. देन व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग? Exactly, what is art of living? The way we are living is art of living, no? कुछ भी चीज करने के लिए we need certain skills. If someone is cooking, then cooking is a skill, no? सब लोग कुक नहीं कर सकते. इट्स एन आर्ट. इट्स एंड सबको स्किल की जरूरत है. तो जीने के लिए भी कला की जरूरत है. तो दिस इज होल पर्पस ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग. एंड लाइक हम लोग जो बात किए अभी जैसे बोले कि आई यूज्ड टू कंडक्ट प्रोग्राम सिंस 2006. So a nice experience of mine, which I am here to deliver in or express my experience in uh, 1 hour or maybe like that. No? Okay. तो कौन से टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे? स्ट्रेस. ये तो ऐसा रहेगा ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रवचन देती रहूंगी और आप अपनी दुनिया में रहोगे. तो अगर आप उसको ये सेशन को वैसे ही बोरियत सेशन बनाना चाहते हैं देन ऑल्सो ओके. मैं बस बोल दूंगी आपको एज ए इंफॉर्मेटिव. आपको इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा, मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगा बट इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा. एज वी ऑल नो, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक कुछ भी हो सकता है, अंदर नहीं जाता है. नो, the moment we started participating and that moment only we can enjoy the things. तो अगर आप सी टाइम आपका वैल्यूबल है जो कि आपने यहाँ पे डेडिकेट किए हो फोर्सफुली मे बी ऐसा है कि आपको ये करना है. जस्ट वैल्यू दैट टाइम एंड अवेल द होल अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से. सो अगर हम स्ट्रेस पे बात करेंगे, मान लीजिए स्ट्रेस पे बात करें पहले. व्हाट इज स्ट्रेस? Yes. हाँ. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो व्हाट इज स्ट्रेस? क्या है स्ट्रेस? क्या है आप बताइए. कुछ तो फील होता होगा ना स्ट्रेस का नाम सुन के. तो स्ट्रेस क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. The
resistance to the amount of external factors Okay. that gives us the chance to resist. The chance to resist. Okay. Anything else? When things go beyond our managing capacity, we think enough is enough. And we get stressed. We can't take any more. Then we say we are stressed. Okay. Yeah, Sulochana ma'am. What is stress? He is typing. Okay. She is telling her mic is not working. Not working. Okay, you can type, madam. Yes, you can write here. It's okay. तो बाकी और किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, बट अगर आप लोग हो और हमें सुन रहे हो, देन यू कैन पार्टिसिपेट. मोस्ट वेलकम. है ना? सी, तो स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है? देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू डू इन आवर डे टू डे लाइफ. नहीं, हमें कुछ काम है जो कि करना है और कुछ टाइम लिमिटेड है. लिमिटेड टाइम में हमें कुछ काम जो कि करना होता है. तो क्या है कि वर्कलोड जो है वो ज्यादा है और लिमिटेड टाइम है हमारे पास. जब वो लिमिटेड टाइम में हमारा वर्कलोड जो है उसके साथ हमारा कोप अप नहीं हो पाता है, देन वहां पे हमें स्ट्रेस होने लगता है. उसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं. तो ऐसा है कि मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो है एनर्जी. एग्री? यस? Agreed. नो? एनीथिंग मे बी? Agreed, ma'am. के लिए Agreed. होती है. ओके. सो एनर्जी जो है वो हमें बहुत सारी चीजों से तो मिलती है, but there are mainly 4 sources of energy: food, sleep, breath, calm and happy state of mind. ये 4 चीज है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ओके. तो एनर्जी क्या है? हमारा कोप अप नहीं हो पाता है वो वर्कलोड के साथ, टाइम पीरियड जो है उसके साथ, तो इसके चलते फिर हमें स्ट्रेस होता है. कैन वी जस्ट Participants, please mute yourselves. जब तक बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज काइंडली म्यूट कर देंगे ताकि वो बैकग्राउंड फिर नॉइज ना, है ना? देन Yes, ma'am, you continue. तो कोई भी चीज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है और लिमिटेड टाइम है, और जब हम उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स कि कोप अप इन द सेंस कि हमारा एनर्जी जो है वो मैच नहीं होता है काम खत्म करने के लिए. हम अपना काम कम कर सकते हैं? नहीं. 24 घंटे को 30 घंटा कर सकते हैं? नहीं. ओके. तो क्या बच गया जो कि हमारे हाथ में है? दिस इज आवर एनर्जी, जो कि हम बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं. जब हमारा एनर्जी हाई होता है तो हमें स्ट्रेस आउट हम फील नहीं करते हैं, हम बोर नहीं होते हैं, हमें बैठे बैठे नींद भी नहीं आती है और हम पार्टिसिपेट करते हैं. दिस टाइम इज 3 से 5 बजे उड़ीसा में. अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम टू सिट, है ना? 3 से 4 बेड के अलावा कुछ नहीं दिखता है. Yeah, true. है ना? तो मैं भी कल भी वही बोल रही थी, यार 3 से 5 ही क्यों मेरे को बोलते हो? आप लोगों को पता है आई बिलोंग टू ओडिशा एंड आई लव टू स्लीप. वो नैप, जो क्विक नैप, हमें नहीं समझ आता. हमें पूरा गहरी नींद की जरूरत होती है दोपहर में. रात में चाहे आप 12-1 बजे तक बोल दो जागने के लिए, चलेगा, है ना?
तो ये जो, लेकिन कुछ चीज है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। आप अभी उस साइड में हो, लेकिन जब आप लोग क्लास सेशंस लेते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है स्टूडेंट से? They should sit tall, this should be like this, that should be, it should happen like this. हम अपना सटल चीज जो है वो एज ए एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, है ना? तो वहां पे अगर हम अपना एनर्जी हाई नहीं रखेंगे तो फिर स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस ऐसी एक चीज है जो कि आजकल ऐसे ही आप घूमने भी जाओ तो भी बाहर से वी आर एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर ड्यू टू दिस पैंडेमिक। बाहर जाते हैं तो वो एक डर रहता है कि हम वायरस साथ में तो नहीं लेके आ रहे हैं, हमें कुछ होगा तो नहीं ना, ये पेंडेमिक खत्म तो हो गया ना, या फिर जिस भीड़ में मैं गया था वहां पे ऐसा कोई सर्दी छींक वाली कोई इंसान तो नहीं था ना। तो ये जो सारा चीज है वो हमें धीरे 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 स्ट्रेस देता ही है, एक्यूमुलेट होता ही है बॉडी में। हम कहीं पे उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, रियलाइजेशन में आता है, कभी कभी हम इतना बिजी हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना? तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक चीज, अगर हमें डर लग रहा है या फिर लग रहा है कि बहुत कुछ है जो कि जैसे बोल रहे थे कि जो कि हमारे इनफ इज इनफ ये लाइन बोलने तक आए, उससे पहले वी जस्ट नीड टू चेक आवर फूड और डाइट, क्या खाया था हमने, एंड आवर ब्रीदिंग पैटर्न, एंड एट द सेम टाइम our state of mind किस पे डिपेंड करता है? our surrounding, हम किस लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, एंड द टॉपिक, हम क्या बात कर रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव बात हो रहा है देन इट्स अपलिफ्ट आवर एनर्जी, बट अगर कुछ नेगेटिव बात होता है तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। वैसे ही डाइट पे जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है हम वही खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एनर्जेटिक फील होगा। और टाइम गैप में हम अगर पानी पी रहे हैं तो ये तो चलो हम खा भी लिए, सो भी लिए, हम कुछ भी खा लिए। क्या खाते हैं? हम बोलते हैं कि क्वांटिटी कितना होना चाहिए। क्वांटिटी तो दिस इज आवर स्टोमक साइज, ये आपके हाथ में जितना है। आप लोग सब लोग यहाँ पे हो ना? मैं बस प्रियदर्शी जी, आलोक सर एंड देवस्मिता मैम को देख रही हूँ, बाकी होपफुली आप लोग, या मधुस्मिता मैम, थैंक यू, आप बीच में एक बार आए थे। फिर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा नहीं लगा जो आप चले गए? नहीं मैम, मैं चली गई नहीं थी, वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं सुन रही हूँ सारे बात। हाँ, तो हमें भी ना थोड़ा हम लोगों का कान भी चेक करना है कि हमें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके चलते आप बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहिए, है ना? यस मैम, यस यस, ओके। तो कहाँ पे थे हम? स्टोमक की कैपेसिटी में, कैपेसिटी में, स्टोमक की कैपेसिटी है, साइज ऑफ द स्टोमक। कहीं कहीं तो घूम फिर के आए इस बीच, है ना? ओके, तो अगर बोलना हो गया आपका तो म्यूट कर दीजिए। यस, तो दिस इज द स्टोमक साइज। लेकिन इतना अगर हम पॉपकॉर्न खाएंगे तो नहीं होगा, भूख लगेगी, है ना? स्टार्टर में भी नहीं गिना जाएगा ये तो ऐसा मान लीजिए जहां पे हमारा मन कर रहा है थोड़ा और ले लेते हैं, एक स्पून, ये आज सब्जी बड़ी टेस्टी बनी है, एक स्पून और ले लेते हैं, एक पूरी तो और चलेगा ही, तो वहां पे हम बंद कर सकते हैं, बिकॉज तब मन बोल रहा है कि और थोड़ा ले ले, लेकिन पेट भर चुका है। तो वो है हमारा क्वांटिटेटिव फूड। एंड क्वालिटी, एज वी ऑल नो, फ्रेश फूड जो है
और बासी खाना नहीं है, तो वो क्वालिटी मेंटेन करता है। तो आप देख लेना जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, तो आप लोग इस पे होमवर्क कर सकते हैं कि कौन सा फूड है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। देन नींद बहुत जरूरी है। दिस इज अ सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोना बहुत जरूरी है। दैट ऑल्सो क्वालिटेटिव। क्वालिटी कैसा होना चाहिए नींद की? गुड नाइट के बाद क्या आता है, क्या बोलते हैं? गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। यस। अगर हमें कोई भी टेस्ट का ड्रीम आ रहा है, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, कोई भी टेस्ट का अगर ड्रीम आ रहा है, तो फिर हमारा गुड नाइट नहीं हुआ, क्योंकि हम तो सपने में रहे, सोए कहाँ। आप देखना कभी कभी 10-15 मिनट ऐसे बैठे बैठे आंख लग जाती है और एक फ्रेशनेस के साथ हम उठते हैं। ऐसा हुआ है कभी? यस। देवस्मिता मैम बोली ये तो रोज की बात हो गई अब तो ऑनलाइन। It happens with me all the time. तो क्या होता है, जो वो 10 मिनट में ऐसा क्या होता है कि हम एकदम फ्रेशनेस फील करते हैं? तब हमारा थॉट प्रोसेस नहीं होता है, तब हमें कोई स्वीट ड्रीम बोलने वाला या बोलने वाली नहीं होती है, इसलिए हम आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो क्वालिटी क्या होना चाहिए? साउंड स्लीप विदाउट एनी साउंड। सो जाओ आराम से, ओनली गुड नाइट। देन क्वांटिटी। क्वांटिटी डिपेंड्स। अगर ऐसा अभी रिसर्च ये बोला है, अगर हम 15 से 20 मिनट ध्यान कर रहे हैं डेली, तो वो 15 से 20 मिनट का जो मेडिटेशन है वो 3 घंटे की नींद को कंपेंसेट करता है। सो द पर्सन हु इज द मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन, जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, देन उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है टू मेडिटेट, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है सोने के लिए, and we have lots of work to do to increase our productivity. We need to meditate. This is the coolest thing, and nowadays is meditation. तो अगर अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, जो कि आई थिंक हर कोई चाहते हैं, कोई भी फील्ड में हो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़े। यस नो? यस। For that, this is we can give it a try at least for 10-15 days. Any kind of meditation, guided meditations are there. You can just play it on YouTube and you can just meditate. तो 15 से 20 मिनट का जो हम हर दिन करती हूँ मैडम, वो रोज करते हैं। ग्रेट। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 3 से 4 घंटे की नींद को जो है कंपेंसेट करता है। तो क्वांटिटी क्या है? अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो मे बी 2-3 घंटे में किसी की नींद कंप्लीट हो सकती है। एट द सेम टाइम कोई अगर 7 से 8 घंटा सो रहे हैं लेकिन ड्रीम लैंड में है, तो वो नींद कंप्लीट नहीं होती है। उठने के बाद फिर भी लगता है कि यार थोड़ा और सो जाए, बड़ा पता नहीं अजीब सा लग रहा है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फूड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्लीप। देन ब्रेथ। ब्रेथ को थोड़ी देर बाद लेते हैं। उससे फोर्थ वन वाज काम एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो जब मन शांत होता है, मन कब शांत होता है? जब अपने हिसाब से सारा काम अपने आसपास होता है, तब अपना मन शांत होता है। यस। लेकिन अपने हिसाब से कहाँ काम होता है? बहुत रेयर मोमेंट है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हर कोई कर रहा है, नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को टू बी काम। देन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। जब हम कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात इन द सेंस कि हम किसी के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को प्रेज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखेंगे, जनरली अगर हमारा बातचीत जो होता है वो गॉसिपिंग में जाता है, किसके लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है ना, या फिर दुनिया में क्या नेगेटिव हो रहा है।
या फिर घर पे हैं तो रिलेटिव्स में क्या नेगेटिव हो रहा है, कितने कितनी गलतियां की वो काउंट होते रहते हैं हम लोगों के फ्री टाइम में। तो उसमें हमारी एनर्जी डाउनवर्ड चलती है, कुछ हाई फील नहीं करते। लेकिन अगर किसी के बारे में हम कुछ अच्छा याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी हाई करती है ना। तो दिस इज द काम एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। एंड द फोर्थ वन इज ब्रेथ। ओके, सब लोग सांस ले रहे हैं, जो लोग स्विच ऑफ किए हैं, स्विच ऑन है, या कभी कभी तो चेहरा दिखा लिया करो, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ। इतने भी क्या नाराजगी है आप लोगों को? नेटवर्क का इतना इशू है क्या? Trupti sir. मैडम गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. अच्छा देवस्मिता मैम, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ନା ନେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଲା। Please switch on your videos so that the session will be more interactive, and without interactive session you cannot meditate and cannot have interaction with madam. Please switch on your video for some time at least. यस, चलिए, एक बीच बीच में एक एक बार बोलने से एक एक वीडियो तो ऑन हो ही रहा है। ओके, तो सब लोग सांस ले रहे हैं, यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ब्लैंक लुक है, डाउट है क्या किसी को? नहीं, परफेक्ट। तो अपना दाहिना हाथ अपने पेट के ऊपर रखें, राइट पाम ऑन योर स्टोमक। Now breathe in and breathe out. Once again breathe in and let go. Breathe in and breathe out. Relax. Okay. तो जब हमने सांस लिया, तीन चीज हो सकती है, या तो पेट अंदर जा सकता है। कितने जन का पेट अंदर गया? ओके, कितने जन को कुछ नहीं पता चला, पेट के साथ सांस का क्या लेना देना? यस। और रेयरली किसी किसी का पेट बाहर आता है, ऐसा कोई है? ओके, सी नॉर्मल थिंग, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है। देवस्मिता मैम, अपना म्यूट है। अच्छा, हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है। मैडम ने हाथ उठाया है। मैडम, उनका पेट अंदर गया था। मैडम आपण कौन पचरावा ले चाहछन क्या? उनका पेट नहीं, अंदर गया था, उसी नहीं, में that is by mistake, I think. ओके ओके। यस। सो तो क्या है, बलून में हवा भरते हैं तो बलून बाहर ऐसे फूलता है। अगर हम थोड़े अवेयरनेस के साथ सांस लेंगे ना, फुर्सत के साथ, अभी एक बार फिर से सांस लेके देखते हैं। Place your palm, right palm on your stomach. You can sit straight. Now breathe in. Full breath in. And breathe out. Once again, breathe in. And breathe out. And relax. Can you feel the difference? अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, है ना। सी, जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर ही आता है, जब हम फुल ब्रेथ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रेथ, पेट भर के सांस लेना। जो हम एक लाइन है जो हम सब बोलते रहते हैं,
अरे इतना काम है कि सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। दिस इज व्हाट इज, इतना टाइम कहाँ है? इसमें तो हम 10 सांस ले लें, है ना? तो अगर हम ब्रेथ को इंस्ट्रूमेंट में भी बोले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेथ यू कैन से, जो मिलके के फुल योगिक ब्रेथ होता है। पहले होता है एब्डोमिनल ब्रेथ, हम पेट भर के सांस ले रहे हैं। यू कैन इंटेंशनली ब्लो योर स्टोमक आउट जब हम सांस ले रहे हैं, वो है एब्डोमिनल ब्रेथ। देन थोरैसिक ब्रेथ, हम चेस्ट में फील कर रहे हैं एक्सपेंशन को जब हम सांस ले रहे हैं। देन रिबकेज एरिया में भी फील होता है और कभी कभी गले तक भी फील होता है। तो ये जो तीनों ब्रेथ मिलके जब हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड योगिक ब्रेथ। हम स्टोमक एब्डोमिनल ब्रेथ लिए, थोरैसिक ब्रेथ लिए, गले तक सांस लिया, फिर जब सांस छोड़ रहे हैं तो पहले थ्रोट से हम रिलीज कर रहे हैं, देन चेस्ट से, देन पेट से, ऐसे हम सांस छोड़ने के टाइम पे कर रहे हैं। तो दिस इज योगिक ब्रेथ। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना, यू कैन फील द डिफरेंस। आपके स्टेट ऑफ माइंड, आप द एनर्जी अमाउंट, यू कैन फील द डिफरेंस एक्चुअली। हाँ, तो क्या है कि सांस के साथ जो कि मेन रोल है अपने लाइफ में, है ना, हम जिसके लिए हैं सब लोग, यू कैन से। अभी तो जितना ब्रीदिंग पे जितना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन ये 2 साल में सब अवेयर हो गए कि सांस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? क्योंकि हर किसी को वो सुनने में तो आया कि अरे उनको ना ब्रीदिंग इशू हुआ, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, चाहे घर पे कोई फील किया कि किसी को रिलेटिव्स में हुआ, किसी के नेबर में हुआ। तो किसी ना कोई तरीके से वो सामने आता गया कि ब्रीदिंग ब्रेथ इज प्लेइंग ए वाइटल रोल। हमें सबको पता तो था, लेकिन इतना चैलेंजिंग हो जाएगा वो हो सकता है अवेयरनेस नहीं था। आज भी हम लोग अवेयर नहीं है ब्रीदिंग के लिए, बट आप और ऐसे हर कोई चाहते हैं कि हमारा मन हमें सुने या फिर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहे, चाहते हैं। यस, नो, यस, ओके। इमोशंस के साथ इमोशंस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मान लो इमोशंस या फिर मन जो है इट्स लाइक ए पतंग, और उसका पतंग को जैसे एक डोर होता है, उसका रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक डोर होता है। तो अब देखना, अगर हमें थोड़ा सा सजगता होगा इस पे कि हमारे सारे इमोशंस के साथ ना हमारे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होते हैं। जब खुश होते हैं तो कुछ अलग होते हैं, जब दुखी होते हैं तो कुछ अलग होते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो अलग होता है। ऐसा कभी नोटिस किए हैं हम? हाँ, किस बारे में बात कर रहे हो आप? गुस्सा होते टाइम तो बिल्कुल नहीं। गुस्सा होने के टाइम तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। जो जो तेज सांस चलती है, देखते हैं अभी उसको, जैसे गुस्सा करते हैं ना, जो जो तेज सांस चलती है। तो सारे इमोशंस के साथ ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अगर हमें अपनी इमोशंस चेंज करने हैं तो वी जस्ट नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट आवर ब्रेथ। और जैसे हमें सबको पता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं थ्रू यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, अभी कोई कोई बोले थ्रू टीयर्स ऑल्सो, बट उसमें मे बी मैक्सिमम 10-15%, बाकी का जो 85 to 90% टॉक्सिन्स है वो थ्रू ब्रेथ हमारा रिलीज होता है बॉडी से। लेकिन जब हम अपनी, और जैसे जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं वो मतलब रिसर्च ये बोला है कि हम अपनी लंग्स कैपेसिटी की ओनली 30% यूज कर रहे हैं, बाकी का 70% हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर 100% ब्रेथ ही नहीं ले रहे हैं तो टॉक्सिन्स कहाँ रिलीज होगा? तो वो स्टोर हाउस बन गया। कहाँ पे? उसका स्टोर हाउस जो हम एक्यूमुलेट किए स्ट्रेस या फिर कभी कुछ इमोशंस को हम रोक देते हैं,
तो वो सारा एक्यूमुलेट हो गया अपने बॉडी में, फिर कुछ बीमारी का नाम लेके वो आगे आता है। तो स्ट्रेस ऐसी एक चीज है जो कि पता नहीं चलता कब अपने शरीर में घर बना लेता है। आप छोटे बच्चे को भी देखोगे तो उस पे भी स्ट्रेस है, वो भी स्ट्रेस में है। एक तो घर का प्रेशर, पड़ोसी का बेटा तेरे से अच्छा कर रहा है, दूसरे टीचर्स का प्रेशर, ऊपर से उनका चैलेंजिंग एज, तो वो सारा चीज लेके वो बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट है। तो आज के डेट पे अगर देखेंगे तो स्ट्रेस जो है हर कोई फील कर रहा है कहीं ना कहीं। किसी को रियलाइजेशन है, किसी को बाद में होता है, किसी को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ओके आई एम इन स्ट्रेस, लेकिन हर चीज से इरिटेशन होती है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं तो we can do one thing, just need to take care of our diet, our sleeping quality, and our breath pattern, and the fourth one, our state of mind. हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। ये अगर हम 4 चीज पे हम ध्यान रखेंगे ना तो we can shift our energy level. Making sense? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो एनीथिंग एल्स, आप लोगों को और कुछ पूछना है या फिर कुछ बोलना है या फिर किस पे बात करना है, या फिर इसी को आप इस पे कोई डाउट है? हाँ, जो बोलना नहीं चाहते हैं यू कैन यूज द चैट बॉक्स। Ma'am, हाँ, how the emotions and expectations are get connected? इमोशंस एंड How the emotions and expectations are both connected? how the emotions or expectations are both connected. How to control emotions during medication. Am I right? Okay. तो इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशन कैसे कनेक्टेड है? एक्सपेक्टेशन आप म्यूट कर देंगे, मेरे को इको हो रहा है। थैंक यू। एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। मान लो यू आस्क दिस क्वेश्चन, यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन, and with that expectation you are asking with all the emotions, you will listen. If my answer is you have certain parameters, okay, if she answer like this then it's okay, if she answer like this then this is not okay. तो ऐसे ही हम सुनते हैं। तो जब हम कोई इमोशंस वही है जो हम एक्सपेक्ट करके, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन पूछा तो उसके चलते हमारे इमोशंस भी रहेंगे कि अच्छा इनको आता है, ओके शी नोज समथिंग, या फिर नहीं आता है। तो इमोशंस जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ पूरी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि सी अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसको अगर मैं आपके एक्सपेक्टेशन जो है उस लेवल तक आंसर नहीं कर पाई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट मीन्स दे आर बड़े अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हमें कुछ टू लर्न समथिंग, नो we need to be in that mode of acceptance, you can say कि ओके अगर ये है तो नेक्स्ट और कुछ हो भी सकता है।
तो इमोशंस जो है उसके साथ एक्सपेक्टेशन के साथ अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। एंड बेटर ये है कि हम थोड़ा सा फ्रीली उसको एक्सपेक्टेशन को एक जगह पे रख के और इमोशंस को दूसरी जगह पे रख के हम बीच में वो बोलते हैं ना कि मिडिल पाथ लेके चले, so that we can balance the emotions and the expectation at the same time. Like you can say साइकिल के दो पहिए, इमोशंस अपनी जगह पे है अगर देखेंगे, एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पे है, बट दे बोथ आर रिलेटेड। यस, ओके Ma'am, I think actually expectations are the main reasons that emotions get compromised. यस, जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो फिर इमोशंस का I तो कोई just रोल ही नहीं। understood those things. जी सॉरी मैम। सर, मैं बोली कि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर इमोशंस का तो कोई रोल ही नहीं है। Yes. सामने वाले मेरे को Yeah. अच्छा बोलेगा तो मैं स्माइल करूंगी, सामने वाले का कुछ बोल देगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, सामने वाला मुझे कुछ बोले, तो फिर यहाँ पे इमोशंस का तो कोई रोल ही नहीं है ना। वी आर expecting something, that's why emotions are there, and being human we all are part of this thing. We can't avoid, we can't say we don't have any expectation from anything, anyone. We have expectation, but at the same time we need to be stand tall, you can say, कि चलो ठीक है। कभी कभी हम ऐसा कर भी देते हैं ना कि चलो ठीक है, उन्होंने नहीं बोला तो क्या हुआ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, है ना, दैट लाइक दैट दे आर रिलेटेड। यस मैम, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ क्वेश्चन ଥିଲା ना Madam, how to control emotion during meditation? how to control emotions during meditation? Okay, why you need to control your emotions? It should flow actually. All Huh? the emotion should come out. What is meditation? Meditation is deconcentration. Concentration is the result of meditation. हमें अगर ये लग रहा है कि हम ध्यान करने बैठेंगे तो एक ही पॉइंट पे से फोकस करेंगे और हमें कोई थॉट्स नहीं आएगा, देन ऐसा नहीं होने वाला। हम जैसे ही आंखें बंद करेंगे, हमें हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, उनके रिलेटिव के पड़ोस में जो रहते हैं, उनका थॉट भी हमें आएगा, जो कि हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो वो क्या है कि इमोशंस जो है वो सॉरी मेडिटेशन जो है उसमें हमारे इमोशंस आते हैं, इट्स टोटली ओके, लेट देम फ्लो। कुछ समय के बाद एक तो ब्लैंक ऐसा रहेगा मोमेंट जहां पे थॉट्स नहीं रहेंगे, तो वो है मेडिटेशन। देयर इज नथिंग टू कंट्रोल। लेकिन हाँ, वो मेडिटेशन करते करते जैसे अभी बात हो रही थी कि एक्सपेक्टेशन या इमोशंस, वहां से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, अनटच्ड रह सकते हैं, वो सबसे बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ मेडिटेशन और सम प्राणायाम। आई मस्ट सजेस्ट सुदर्शन क्रिया। मैडम, और एक क्वेश्चन है, शंकर सर पूछ रहे हैं, हाउ टू रिमेन हैप्पी कॉन्शियसली? कॉन्शियसली, continuously have to be happy continuously. We need to train our mind. Hello, you are happy, that we need to train our mind. सुबह उठो और जाके मिरर के सामने खड़े होके बोलो, वाह। Madam, this question is asked by the person who is the most happiest person, I think. One of the most happiest person I've seen. शंकर सर, जिसके पास जो चीज होता है वो वही चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। he always remains happy, but still he wants to remain more happy. It's a blessing. See, ये ऐसा है ना कि जो लोग खुश है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं आता है, बट द थिंग दे नो हाउ टू
इट्स टोटली अप टू अस नो कि हम सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं, एज अ चैलेंज और एज एन अपॉर्चुनिटी. If I will take as an opportunity, then I will be happy. लेकिन अगर चैलेंज के तौर पे लेंगे तो मेरे से बड़ा दुखी संसार में कोई होगा ही नहीं. हाँ मैम, इट इज करेक्ट. यस. तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आपको आंसर ही पता है. चलिए, सबके लिए बहुत अच्छा हुआ, है ना. और ऐसा है कि हम हमेशा जो करना चाहते हैं ना कि इट शुड बी लाइक दिस फॉर द लाइफ टाइम. जैसे 31 दिसंबर को हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि ये साल तो हम ऐसा ही करेंगे, और 5 तारीख तक वो ऐसा होता है. फिर 6 जनवरी से फिर बैक टू स्क्वायर वन, हम जैसे थे वैसे ही है, अगले साल देख लेंगे. फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर, उसी साल का जब दिसंबर आता है, देन वी स्टार्ट कि भाई तेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है, मेरा तो ये है. सो इन दैट केस वी कैन डू वन थिंग, वी कैन ट्रेन आवर माइंड कि चलो भाई 5 दिन के लिए ना दुखी मत होना, कुछ भी हो जाए. दैट डजंट मीन कि किसी के सामने किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और हम वहां पे जाके स्माइल कर रहे हैं. नहीं, हम उनके सामने तो दुखी हैं, लेकिन अंदर से जो होता है ना कि हम अंदर से अनटच्ड हैं. द अनटच्ड पर्सन ओनली कैन स्टे हैप्पी. और कंटिन्यूअसली यस, यू कैन बीच बीच में मिरर देख के जाके बोल देना, वाह भगवान तूने क्या चीज बनाया, बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं चलता है, बस मुझे ही पता है. मिरर के सामने बोलना, लेकिन, है ना. ओके, एनीथिंग एल्स. सी, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना. I want to ask something, ma'am. That is not exactly from my point of view, but from the point of view of my parents. Okay, so now, maximum times they are in stress because of comparing their children with respect to others. His or her son like this, and he's doing like this. The one and only reason of my parents, they are stressed due to this reason of comparison. But I think that there should not be comparison between any two individuals, because nature, ability, capacity of two individuals are completely different. Exactly. So we should try as per our ability, but we should not compare with any other person. So how it can be reduced for my parents? For your parents, see, कुछ चीज ऐसी होती है जो कि हम बदल नहीं सकते हैं, है ना. और कुछ चीज ऐसी होती है जो कि हम बदल सकते हैं. अगर मान लीजिए कि उनको या फिर किसी के नेचर में है वो कंपैरिजन या फिर वैसा करना, वी कैन पुट ए लाइटली दैट जो हमारे बच्चे हैं उनका जो पॉजिटिव है उनको भी बताया जाए कि भाई देखो ऐसा भी है घर पे कि जो लोग हमारे बच्चे भी अच्छे करते हैं. बट इट्स अ जनरल थिंग एक्चुअली. अगर हम देखेंगे तो ये सबके घर पे होता ही है. हम घर पे जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं उनका बच्चा ऐसा है, हम उनको बोलते हैं तेरा दोस्त ऐसा करता है. लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, आप देखना, ये बढ़ते बढ़ते आजकल के बच्चे भी ये बोलने लगे हैं. अगर आप नोटिस करोगे, उनके घर पे ऐसे है, उनके मम्मी पापा ऐसे करते हैं. अभी एवर नोटिस, बच्चे आजकल ये बोलने लगे हैं. एंड ये हमारे से ही गया है उनकी ओर, क्योंकि हमने वैसे ही बना दिया है कंपैरिजन कर करके, है ना. तो पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को नहीं बदल सकते कहीं ना कहीं. नहीं मैम, हम पेरेंट्स को बदलना नहीं चाहते. नहीं बदलना. Last 3 to 4 years, they themselves they are in very much stress level. Their stress level is so high. Now they started comparing our kids with other kids. Exactly. तो ये स्ट्रेस का कारण उनका जो है ना
ये कहीं ना कहीं आपके, अगर मैं ऐसे इन जनरल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ और हुआ होगा जिसके कारण से वो स्ट्रेस्ड आउट है, जो कि यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन है। मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, मैं नहीं जानती आपके घर पे क्या है, क्या सीन है, यू बेटर नो। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं फैमिली इशू है, जो कि यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज, That reason. Okay. है ना? क्योंकि सी योर किड्स मतलब दे आर द ग्रैंड पेरेंट्स, नो? और ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू ब्लेस। Yes, no doubt. हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जो कि समथिंग इज देयर इन देयर माइंड, सो बेटर यू टॉक टू देम फ्रीली एंड आस्क व्हाट इज द रियल कॉज। यू कैन आस्क, मतलब ऐसे तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, आपको थोड़ा उस पे स्किल यूज करके उनसे बात सुनना पड़ेगा। Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so anything else? Yeah, Shilpa ma'am, nice to see you. Okay. So, have you ever had pranayama? Yes. What is pranayama? There are two words, pran and ayam. Pran is the life force energy. Ayam is controlling or the directing. तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी को डायरेक्शन देता है वो है प्राणायाम। कब करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए प्राणायाम? ऐसा कुछ है? नहीं है? श्योर? दिस इज जस्ट लाइक किस एज में ब्रीदिंग करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्टली। सो ये ना आज के डेट पे ये 2 साल हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक्चुअली ब्लेसिंग हो गया कि समझाना नहीं पड़ता है व्हाई टू डू प्राणायाम। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले मतलब जैसे 16-17 साल से मैं सिखा रही हूँ, तो डॉक्टर बोलेंगे तो आएंगे, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया प्राणायाम करने के लिए, या फिर सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर बहुत ऐसा भी होता है बहुत खुश मिजाज लोग भी, कुछ नहीं हुआ है वो लोग भी सीखने भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं या फिर रहता है कि चलो अभी तो उम्र ही क्या है ये सब करने की। बिकॉज आई स्टार्टेड इन 16, आई वाज इन, यस आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड। तो तब भी मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे, रिलेटिव्स भी बोलते थे, क्या हो गया तुझे, क्यों प्राणायाम कर रही है, क्या मिलेगा, तबीयत ठीक है ना? मतलब ये सारे क्वेश्चन जुड़े थे, और आई हैव टू आंसर ऑल दिस बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, है ना? ऐसा क्या हो गया कि तू प्राणायाम कर रही है? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कर रही हूँ। हाँ, तो प्राणायाम के लिए कोई एज नहीं है, ना ही डॉक्टर बोलने के लिए है। प्राणायाम इज वी ऑल आर लिविंग, लाइफ फोर्स इज देयर टू कंट्रोल आवर लाइफ, लाइफ फोर्स, वी नीड टू डू प्राणायाम। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक प्राणायाम सीखते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी जो देती है। ठीक है, करेंगे? यस नो? मूड में है आप लोग? यस यस यस। 4 जन तो चेहरा दिख रहा है, बाकी 30 others are there, so hopefully you all are enjoying behind the screen. If no, then please start enjoying. है ना? सी 2 घंटा अपना है,
या 1.5 घंटा अपना है, इट्स टोटली अप टू अस कि हम उसमें क्या भरना चाहते हैं, है ना। वैसे ही 1.5 घंटा ये जो है वैसे ही अपनी लाइफ है, व्हाट वी वांट टू ऐड। ब्लैंक पेज है, जैसे ये बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, दिस लाइफ इज गिफ्टेड एज ए, दिस बुक इज ब्लैंक, वी कैन फिल जो भी हम लिखना चाहते हैं as per our wish. So if you are not enjoying, then start enjoying. Okay. जिनको हाई बीपी है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, देन यू कैन जस्ट सिट एंड वॉच एंड बी हैप्पी विद दिस। नहीं तो फिर हम कर सकते, अगर किसी को मेजर ऑपरेशन कुछ हुआ है 6 महीने के बीच में, देन यू कैन जस्ट वॉच दिस। सो ये है, दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। मे बी हम में से किसी को पता भी होगा। सो फॉर दिस वी नीड टू सिट straight like this, the spine erect. Am I audible? Yes. So spine straight रहेगा and दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी पास में, और सारे मसल्स लूज हैं, कोई भी मसल्स टाइट नहीं है। फेशियल मसल्स लूज है और कंधा भी लूज है। पहले ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा लूज कर लीजिए। यहाँ प्रियदर्शी सर, I'm having BP, high BP. थोड़ा सा भी करके देखते हैं, अगर आपको अनईजी लगेगा देन फिर हम बंद कर, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। यस, जस्ट लाइक दिस, ओके, एंड रिलैक्स, रिलैक्स, हाथ छोड़ दीजिए। विल डू सम स्ट्रेचेस। 1 घंटे से बैठे हैं या पर पता नहीं आप कितने टाइम से बैठे हो। सो विल डू सम स्ट्रेचेस, वैसे ही बैठे बैठे विल डू चेयर आसन, देन विल डू प्राणायाम। सो दिस ब्रीथ इन, सांस लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ऐसे लेके जाएंगे। इंटरलेस योर फिंगर्स and stretch up, stretch up, up. And smile. And stretch up, stretch high, high, high. Keep breathing. And relax. हाथ ऊपर ही है, जो स्ट्रेच कर रहे थे बस उसको छोड़ दिया हमने, लेकिन हाथ ऊपर है। Now bend to your right side. Keep breathing. Come to the center, left side. Come to the center, bend forward. And stretch up. Go back. And center. And relax. Right palm on your left knee. दाहिना हथेली बाएं घुटने के ऊपर, बायां हथेली पीछे, and twist to your left side. Come to the center. Other side, left palm on your right knee, right palm behind your left buttock, and twist to your right side. Come to the center and relax. And give a gentle massage to your head. दोनों हाथों से
ऐसे अच्छे से प्रेस करें। या प्रियदर्शी जी, यू कैन डू दिस। अच्छे से मसाज करें। बायां हाथ नीचे ले जाएं, दाहिने हाथ से अपनी सर के ऊपर रखें पूरा। नाउ प्रेस इट डाउन एंड रोटेट। हेयर स्टाइल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा बट इट्स ओके। एंड रिलैक्स। सो आईब्रोज को, दोनों आईब्रोज योगा ना ऐसी एक चीज है जो कि करने से उसको फायदा होता है। सो जो लोग वीडियो ऑफ किए हैं, होपफुली आप लोग कर रहे हो वहां पे। एंड रिलैक्स। अब कान को खींचते हैं। कान को खींचिए अच्छे से। बोलते हैं कि कान खींचने से अवेयरनेस आती है, इसलिए बचपन में जो उठक बैठक करवाते थे ना, बचपन में जो उठक बैठक हुआ था कान पकड़ के, वो अवेयरनेस के लिए। खींचे अच्छे से खींचे। अभी तो और कोई नहीं है खींचने वाला, खुद को ही खींचना पड़ेगा। एंड रिलैक्स। अब आंखों को बंद करते हैं। स्क्वीज योर आईज टाइट एंड वाइड ओपन। once again close your eyes and squeeze tight। थोड़ा जोर से बंद करें आंखों को एंड वाइड ओपन। You can blink your eyes faster। Blink, blink। Once again, close your eyes, squeeze and wide open। And अब गाल को खींचते हैं। स्माइल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ऐसे गाल खींचने से। ऑटो सिस्टम। अगर कभी हंसने का मन करे लेकिन हंसी नहीं आ रही हो, देन यू कैन जस्ट पुल योर चिक्स। नाउ द जॉ लाइन। And relax। Make the teddy bear face। अब ना जीभ को हम उल्टा लेके जाएंगे अंदर। जब हमारा जीभ राइट साइड में होगा तो हम आंखें ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे। विल लुक अप टू द लेफ्ट साइड। जब जीभ बाईं तरफ होगा तो हम राइट साइड ऊपर देखेंगे। एंड रिलैक्स। कीप योर आईज क्लोज। आंखें बंद रखें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ब्रीथ इन and breathe out। Once again, breathe in and let go। And gently you may open your eyes। आंखें खोल सकते हैं। So we'll do भस्त्रिका प्राणायाम, फिर हम उसके बाद एक ध्यान करेंगे। Okay, we'll meditate for a few times।
बस ध्यान में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सुनना है, दैट्स ऑल। तो भस्त्रिका में हमें सिटिंग पोजीशन, विल सिट स्ट्रेट विद स्पाइन इरेक्ट और दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी। जब हम सांस लेंगे तो हाथ ऊपर जाएगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जब हाथ नीचे आएगा, हम सांस छोड़ रहे हैं तो हाथ नीचे आ रहा है और मुट्ठी बंद हो रहा है। इसमें हमें फोर्सफुली सांस लेना है, फोर्सफुली सांस छोड़ना है। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, आप लोग देख लो, फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। मैं बस मधुस्मिता मैम और देवस्मिता मैम को देख पा रही हूँ, बाकी आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो होपफुली आपको समझ में आया है कैसे करना है। नहीं आया है तो आई डोंट नो आप लोग कैसे क्या करोगे इसको। Please switch on your videos so that you can try with madam and us. अगर घर पे कहीं घूम रहे हैं तो कहीं पे बैठ जाएं आराम से। नाउ टेक पोजीशन, विल डू टुगेदर, एक साथ ही करेंगे। सो सिट स्ट्रेट और आंखें बंद कर लें। Keep your eyes closed. Long and deep breath in and breathe out. For Bhastrika, forcefully with count, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, 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 and relax. विश्राम करें। Observe your sensation in your body and mind. शरीर और मन में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसकी ओर सजग रहें और आंखें बंद रखें। Second round, we'll do it once again. Take position, nose faced in front of your shoulder. Body relax. Chin up, breathe in and breathe out. Forcefully with count, breathe in, out, in, 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 and relax. Observe the sensation in your body and mind. शरीर और मन में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसकी ओर सजग रहें और आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed, body relax, आंखें बंद। The last round, Bhastrika Pranayam. Take position. Long and deep breath in, breathe out. Forcefully with count, breathe in, out, in, out, in,
in, in, in, in, in, in, in, in, and relax. विश्राम करें, आंखें बंद रखें. Keep your eyes closed. Observe the sensation in your body and mind. Sit comfortably and easily. आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठे. Take a deep breath in and breathe out. Once again, breathe in and let go. अपने आसपास से जो भी आवाजें आ रही हो उसकी ओर सजग हो जाए. पंखे की आवाज, लोगों की बात करने की आवाज, गाड़ियों की आवाज, accept all the noises. Breathe in, सांस अंदर and breathe out. अंदर जाती हुई सांस हमें ऊर्जा देती है और बाहर निकलती हुई सांस हमें विश्राम देती है. The incoming breath energizes our body and the outgoing breath gives relaxation. Become aware of the rhythm of your breath. सांसों की लय की ओर सजग हो जाए. Once again, breathe in and let go. Become aware of your body. अपने शरीर की ओर सजग हो जाए. ये शरीर भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ एक अनोखा तोहफा है.
ऑनर योर बॉडी। ये शरीर को पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। Once again, breathe in and let go. Become aware of your feelings, whether good feelings or bad feelings. Doesn't matter. We are just witnessing our feelings, nothing to do with that. Once again, breathe in and let go. Become aware of your thoughts, whether good thoughts or not so good thoughts. We are just witnessing our thoughts. Breathe in and breathe out. Become aware of your body and surrounding. शरीर और परिसर की ओर सजग हो जाए। Breathe in and breathe out. Slowly and gradually, whenever you feel like, gently you may open your eyes. अपना समय लेते हुए जब भी मन करें धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।
So, was that good? Very good, madam. जो लोग किए हैं हम ऐसे मान लेते हैं कि हर कोई किए. Refreshing, ma'am. Refreshing? Yes. This is. तो कभी भी हमें ऐसे डल फील हो रहा है या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी लो है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए वी कैन डू भस्त्रिका प्राणायाम. या फिर आपको कफ कोल्ड का इश्यू है तो भी इसमें बहुत यूजफुल होता है ये. और जिनको जैसे मैं बोली कि हाई बीपी अगर है तो यू कैन डू इट लाइटली, ज्यादा फोर्स नहीं देके यू कैन डू इट लाइट. इसमें हम कर सकते हैं. और सिर्फ इतना सा करके अगर रिफ्रेशिंग लग रहा है तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जब भी मौका मिलेगा आप कर लो. सुदर्शन किया, आप में से कोई किए हैं क्या? शायद आपके कॉलेज में लास्ट ईयर इंडक्शन में हुआ था स्टूडेंट्स के लिए, है ना? Yes. रेगुलर कॉलेज जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए होता है. बट हमारा स्ट्रेस भी कभी कभी स्टूडेंट्स पे आ ही जाता है ना? Yes. For that, as a torch bearer, you can say, because we can deliver what we have. Yeah, if you are happy inside, that will reflect. Yes. Anything else? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. कुछ फोटोज और कुछ ब्लैंक है, but still I enjoyed this session. आप I लोगों enjoyed too, madam. Thank you so much. So anyone wants to share experience? या फिर आप बाद में एक्सपीरियंस शेयर करोगे या कैसा है, या फिर हम और कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? या देवस्मिता मैम, is there anything we need to discuss? If anyone wants to ask anything, ब्लैंक हो गए हैं सब ध्यान करके. Yeah. So keep smiling, keep inspiring. No? Keep inspiring your neighbors, keep inspiring your family members, and take care of yourself. Inspire yourself also. No? thanks to you, madam, for inspiring us, Okay, thank you. for giving us energy. Some energy. Keep your energy high. No? Sure, ma'am. Thank Okay, you so thank you for visit. Oh, और कोई कुछ पूछना चाहता है? Anybody else wants to ask anything? Okay, what is the time of quiz? Quiz after half an hour you'll get the quiz, I think. oh, FDP. Madam. Last week I was conducting one FDP of